मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th इन्वायरमेंट में लेसन नंबर 1 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। योर टीचर्स यूज chalk for writing on the blackboard. You write with pen in your copy. The pen for you and chalk for your teacher is a resource of writing. Similarly, anything or material which is useful is a resource. The resources related to natural environment are called natural resource. Air, rain, mountains, sunlight, water sources, forestry, coal, minerals, oil, etc. are the natural resource. Man, animals, insects, etc. all are the part of natural resource environment. All these part of natural are related to each other in one or the other form. Any one of these parts when becomes less or more, then the balance of nature start getting imbalanced. We have to face many natural disasters due to this imbalance. Water has special importance in natural resource. Water is a valuable resource. Let us know about it. I am useful to you at every time. You cannot work without me. Whether you go to school or go for walking, I remain with you. I am present in the sky, inside the ground. River and sea, I remain present in solid, liquid and gaseous form. Tell, who am I? What is my name? आपका शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चॉक का उपयोग करता है और आप अपनी कॉपी में पेन के साथ लिखते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कलम और शिक्षक के लिए चॉक लेखन का एक संसाधन है। जो आप हैं वो पेन यूज़ करते हैं और टीचर जो है वो चॉक यूज़ करता है। तो वो जो पेन और चॉक है वो आपका लिखने का एक संसाधन है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु या सामग्री जो उपयोगी है एक संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे उसमें वायु, वर्षा, पहाड़, सूरज की रोशनी, जल स्रोत, वन, पेड़, कोयला, खनिज आदि, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य, प्राणी, कीट आदि सभी प्राकृतिक संसाधन परिवेश के ही अंग हैं। जो प्राकृतिक संसाधन उन्हीं के ही अंग हैं। प्रकृति के सभी भाग एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। इनमें से एक भाग कम या अधिक हो जाता है तो प्रकृति का संतुलन असंतुलित हो जाता है, यानी कि उसको इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। असंतुलन के कारण हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना भी पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन में पानी का सबसे ज़्यादा और विशेष महत्व होता है। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मूल्यवान संसाधन होने के साथ साथ पानी का प्रयोग या उपयोग हम हर समय करते हैं। तुम मेरे बिना काम नहीं कर सकते, चाहे आप स्कूल जाते हो या चलने के लिए यानी कि वॉक करने जाते हो। मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। मैं आसमान में मौजूद हूँ, यानी कि मैं स्काई में भी रहता हूँ। मैं ज़मीन, नदी, समुद्र, मैं सभी जगह सब के अंदर मौजूद हूँ। मैं तरल, ठोस व गैस के रूप में भी मौजूद हूँ। इस प्रकार जो पानी है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। एंड नेक्स्ट इज यस, यू आर राइट, आई एम वाटर, all need me. The existence of all the living beings, animals, plants and trees is possible due to me. I am needed in fish farming, growing vegetables, doing cultivations, running industries and factories, producing electricity, doing irrigation, extinguishing the fire, cooking food and washing the clothes. It is impossible to imagine the life without water on the earth. One way, the clean, soft and cold water give life to us. The other way, the rivers flowing from high mountains, beautiful lakes and ponds in the various form of water attract all of us. Water is very important for all the living creatures. It helps in digesting the food and disposing of the waste material of all living creatures. Water play an important role in determining the season and climate. Thus, life is not possible without water.
The life of all the living creatures of the world is based on water only. Water is an essential requirement of life. No life can exist without water. It occupies around 70% water on the Earth's surface, mostly in the form of sea, lake, and rivers. That is why, from space, the Earth appears blue in color. Water is also present below the Earth's surface in the form of ground water table. This underground water is brought up for drinking and irrigation purpose by boring tube wells. Water is also deposited in the form of ice caps, glaciers on a large scale on the south and north poles, the tops of high mountains, and the extensive areas of temperature parts of the earth. This water is utilized by the plants, animals, and other creatures only during the summer period when ice melt into the liquid form. किस प्रकार वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले हमने उसकी इम्पोर्टेंस भी जानी थी। अब वो बता रहा है कि तुम कौन हो। हाँ, तुम सही हो, मैं पानी हूँ, सभी को मेरी ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है ना कि वाटर के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सभी को मेरी ज़रूरत है। सभी जीवित प्राणियों, जानवरों, पौधों और पेड़ों का अस्तित्व मेरे बिना संभव नहीं है। मुझे मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग, सब्जियों की खेती, उद्योगों और कारखानों, यहाँ तक कि बिजली उत्पादन, सिंचाई या आग बुझाना या खाना पकाना या कपड़े धोना, सब में मेरी ज़रूरत होती है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है वाटर हमारे लिए। पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। एक तरफ साफ जल, कोमल और ठंडा जल हमें जीवन प्रदान करता है, तो दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ, विभिन्न प्रकार के जल में समुद्र, झीलें और तालाब सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भोजन को पचाने में और सभी जीवित प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने में सहायता करता है। मौसम के निर्धारण में पानी की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं होता। दुनिया के सभी जीवित प्राणियों का जीवन केवल पानी पर ही आधारित होता है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। संसार के सभी जीवित प्राणियों का जो आधार है वो केवल जल ही है। पानी जीवन की एक आवश्यकता है। पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल का है, जो अधिकतर सागर, झीलों और नदियों के रूप में है। इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। पानी भी जो जल का स्तर होता है वो भी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद है। इसे भूमिगत जल का स्रोत पीने के और सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों से पानी लाया जाता है। पानी भी बर्फ टोपियों, दक्षिण व उत्तरी ध्रुव पर बड़े पैमाने पर हिमनद, ऊंचे पहाड़ों के शेष तथा पृथ्वी के जो शीतोष्ण भाग हैं उस पर विस्तृत क्षेत्र के रूप में जमा रहता है। इस जल का उपयोग बड़े उद्योगों और जानवरों और अन्य जीवों द्वारा गर्मी के दिनों में ही किया जाता है, और बर्फ जो होती है वो पानी के रूप में धीरे धीरे मेल्ट होती है, यानी कि पिघलती रहती है।